Yes, good morning all. Welcome to the class. This is Rita Madam, your political science teacher, grade 11. I hope you have arranged your books and copies. So now we are going to start our book one, Constitution at Work. Right. Little I have given you some of the introduction about Constitution. ठीक है? इसके कितने articles थे पहले, आज कितने हैं? And it is the lengthiest constitution of the world. When it was made, how it was implemented. Right. So basic things we have done. तो कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों ने ही मुझे बताया था, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स विच ऑल द पीपल हैव टू फॉलो, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो. नो वन कैन गो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारी सबसे बड़ी बुक है, हम इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. बट वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि वट एवर इट इज रिटन वन टाइम इट विल नेवर चेंज. इट कैन चेंज, बट चेंज की जगह पर मैंने कुछ और वर्ड बोला था. कैन यू टेल मी मान्या? अमेंड कर सकते हैं हम इसको. अच्छा, हाउ मेनी अमेंडमेंट्स डन टिल नाउ? आज तक कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं अंदाजा? अच्छा, आज ऐसा करो, ग्रेड 11 ओपन योर कॉपीज एंड राइट डाउन टुडेज डेट. बुक 1, चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ. टुडे आई विल गिव यू नोट्स ओनली. हाँ, आज पढ़ने पढ़ाने वाला थोड़ा कम करेंगे. टुडे आई विल गिव यू नोट्स. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? साहिल बेटा कैमरा ऑन, गुरकीरत कैमरा ऑन. आप ही ने मुझे बताया था कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट ऑफ बुक ऑफ रूल्स which all the people have to follow. Now write one line, your 1 mark answer. What is constitution? A constitution is a, start writing beta. Short answer, very short answer. A constitution is a body of fundamental principles. Fundamental matlab basic. A constitution is a body of fundamental principle according to which according to which a state is constituted or governed. According to which state is constituted or governed. The constitution is a compact document. Compact matlab complete. A constitution is a compact document a constitution is a compact document a constitution is a compact document that comprises of a number of articles that comprises of a number of articles about the state. A number of article about the state. मान्या तो किसी और आईडी से भी लॉगिन कर रही है.
So this is constitution. Now write one more question. Functions of constitution. हमने constitution बनाया ही क्यों, इसकी क्या जरूरत पड़ी? What are the basic functions of constitution? समझाया नहीं अभी मैंने कुछ. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज राइट, देन आई विल टेल यू. अभी बस कुछ नहीं करना, सिर्फ लिखते जाओ. साई थोड़ा कैमरा पीछे कर बेटा. यस, व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? साहिल बेटा कैमरा ऑन. यस बेटा. अमरपाल बेटा कैमरा ऑन. अच्छा, नाउ कम टू योर बुक. ओपन योर बुक. बेटा आई एम हैविंग पेज नंबर 2. अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है, बुक अभी शुरू नहीं की है हमने, ठीक है, हमने कुछ भी पढ़ा नहीं है. नाउ इट इज रिटन व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. आप यहीं पर इस पेज में आपको दिख रहा है ना बेटा, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. यहीं पर अपने हाथ से ऊपर लिखो फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. 6 मार्क्स आंसर. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? अपने हाथ से लिखो बेटा, सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू. Now first point it is written, Constitution allows coordination and assurance. बेटा ये पूरी लाइन अपनी कॉपी पे लिख लो, मैं आपको बता दूंगी कैसे, each and everything. फिलहाल यही लिखो फर्स्ट पॉइंट. This is the heading only, and today we are going to write headings only. Constitution allows coordination and assurance. बेटा सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पेज, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स. Specification of decision making powers. Specification of decision making powers. Third, limitation on the powers of the government. Limitation on the powers of the government. Powers of the government. Next point, open your book, next page. Aspiration and goals of the society. Aspiration and goals of the society. तनिष्क लिख रहे हो बेटा? Aspiration and goals of society.
Next, fundamental identity of the people. Fundamental identity of people. Done 5 points. Okay, these are the major functions. Today we are not going to start the function कि कैसे कैसे किस किस का कैसे कैसे काम है, आज नहीं करेंगे. Write down next question. अगला क्वेश्चन लिखो. लवजोत इधर ध्यान दो बेटा कॉपी पे. नेक्स्ट बेटा. Name any 4 members. Name any 4 members of Constituent Assembly. आविशी बेटा कैमरा ऑन करो. Name any 4 members of Constituent Assembly. Answer. Number 1, Dr. Rajendra Prasad. Rajendra. Dr. Rajendra Prasad. Number 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू. तरन लिख रहे हो ना, नोट्स चाहिए मुझे कंप्लीट कॉपी. ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू. थर्ड, सरदार पटेल. ब्रैकेट में लिख लो आयरन मैन ऑफ इंडिया. सरदार पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया. सरदार पटेल का ही स्टैचू बना है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैचू. कैन यू टेल मी इन विच सिटी? रेज योर हैंड्स दोज हु नो विच सिटी. हाँ जी, सुरखाब. विच सिटी? मैम इन गुजरात. इन गुजरात. हाँ जी, गुरकीरत. विच सिटी? गुजरात. इन गुजरात. यस, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का खुद का एरिया वो, वहीं पर उन्होंने आयरन मैन ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी मूर्ति लगाई है. हाँ जी. लास्ट, फोर्थ, मौलाना आजाद. मौलाना आजाद. Now 4 members we have completed. Next question, what is the nature of India? सौरभ तो थक जाएगा लिखता लिखता. What is the nature of India? What is the nature of India policy? आप India policy लिखो. What is the nature of India policy? According to the preamble. Preamble क्या कहता है इंडिया के बारे में? थोड़ा सा मैंने आपको बताया था 2 days before. Preamble देखा कभी? Have you seen preamble? Raise your hands. कहीं पढ़ा हमने preamble? कहीं होता है preamble? अच्छा. Where? Raise your hands. हाँ, तरन से पूछती हूँ. तरन ने हैंड रेज किया. तरन, कहाँ preamble हमारा? मैम बुक के आगे. हाँ जी, वेरी गुड. बुक के सबसे आगे ये लिखा है कि हमारा इंडिया कैसा है. वी द पीपल ऑफ इंडिया. थैंक यू तरन. वी द पीपल ऑफ इंडिया. Now show me this page on your book. All the students will show me, like I am showing you. Thank you, Avishi, Manya, Harsimar. Waiting for others' book.
हाँ जी तरन, सरबजोत दिखा प्रियम्बल। ओके सुरखाब, लवजोत, सरबजोत बुक बेटा बुक, तनिष्क बुक बेटा। प्रियम्बल पढ़ेंगे ही तो हमें पता चलेगा इंडिया कैसा है। इसकी फर्स्ट लाइन है, देखो जैसे ही हम बुक खोलते हैं ना, इसकी फर्स्ट लाइन है प्रियम्बल, और प्रियम्बल में सबसे पहले पेज पर लिखा है व्हाट इज कंट्री लाइक इंडिया। तो वहां पर फर्स्ट लाइन लिखी हुई द पीपल ऑफ इंडिया। सरबजीत शो मी योर बुक। मुझे पहले ही पता तेरे पास होगी नहीं बुक। अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। सरबजीत नहीं अरेंज हुई बुक बेटा? मैम लेनी आज लेनी है। ओके चलो। Now, those who are having preamble, those who are watching preamble on the first page of the book, वहां पर लिखा है the no Taran, not this kind of smileys beta, no. We the people of India having solemnly resolve or constitute India into a sovereign. तो first point लिखो, write down first point. India is a sovereign state. India is a sovereign state. Sovereign क्या होता है? हाँ मान्या, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंट। हाँ जी इंडिपेंडेंट। मैं कल से फिर पूछने वाली हूँ आपसे सोवेरेन, ठीक है? सेकेंड टाइम थर्ड टाइम आई विल नॉट टेल यू द मीनिंग ऑफ सोवेरेन। सोवेरेन मीन्स इंडिपेंडेंट। इंडिया इज अ सोवेरेन कंट्री। सेकेंड पॉइंट बेटा, इट इज रिटन सोशलिस्ट। इंडिया इज अ सोशलिस्ट स्टेट। इंडिया इज अ सोशलिस्ट स्टेट। थर्ड, इट इज रिटन सेक्युलर। एम आई राइट? प्रियम्बल में लिखा ना सेक्युलर। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर? हाँ हरमन। मैम मैम और रिलीजन मैम इक्वल होते हैं मैम। यस हाँ लवजोत। मैम आप स्टेट कह रही है कंट्री कह रहे हैं? बेटा यहाँ पर सेकुलर कंट्री। यहाँ पर स्टेट का मतलब कंट्री ही है। बहुत से लोग सोच लेते हैं स्टेट मतलब पंजाब स्टेट, महाराष्ट्र, गुजरात स्टेट, बट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, तो वहां पर एक स्टेट नहीं, वहां पर मैं बात कर रही हूँ कंट्री की ही, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी, सेकुलर क्या होता है लवजोत? सेकुलर मैम जस्ट नाउ वन स्टूडेंट टोल्ड, हरमन ने बताया अभी। मैंने सुना नहीं अभी। सुना? चलो हरमन बता, तरन बताएगा। तरन। मैम जहाँ ऑल रिलीजन इक्वल होते हैं। Yes, when all religions are equal, that state is called secular state. Nanji, next point. Next, they have written democratic republic, है ना? हम लोग हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है ना? नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट। यहाँ पर सब जगह ही मैंने लफ्ज स्टेट स्टेट बोला, बट हेयर स्टेट मीन्स अ कंट्री। ओके, यहाँ पर एक स्टेट की बात नहीं हो रही है। इंडिया इज अ सोशलिस्ट स्टेट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉरी, या डेमोक्रेटिक स्टेट, कुछ भी लिख लो। नेक्स्ट, इट इज रिटर्न रिपब्लिक। इंडिया इज रिपब्लिक, प्रेसिडेंशियल रूल है यहाँ पर। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं हम लोग। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था 26 जन, तो इंडिया इज रिपब्लिक। इंडिया इज अ रिपब्लिक। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रियम्बल? प्रियम्बल क्या होता है? व्हाट इज अ प्रियम्बल?
बेटा कैमरा ऑन करो, तनिष्क, अमरपाल, हरमन। वैसे आप बताना प्रियम्बल क्या होता है, थोड़ा सा मैंने आपको बताया रखा। ये प्रियम्बल क्या होता है अविशी? Preamble is an introduction or overview of our constitution. ठीक है, या फिर हम इसको इंडेक्स भी कह सकते हैं। हाँ जी, स्टार्ट राइटिंग आंसर। द प्रियम्बल इज अ समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मत लिखो, आप लिखो द प्रियम्बल इज अ समरी ऑफ, द प्रियम्बल इज अ समरी ऑफ objective, objectives and the basic philosophy, and the basic philosophy of the constitution. Basic philosophy of the constitution. Next question, how many members were there in the constituent assembly? हाँ तरन बेटा, हाँ तरन बेटा, मैम रिपीट करियो प्रीएम्बल वाला। हाँ जी लिखो बेटा। The nature, sorry, the preamble is a summary of the objectives. प्रीएम्बल वाला रिपीट करियो। The preamble is a summary of the objectives, the preamble is a summary of the objectives and the basic philosophy of the constitution, and the basic philosophy of the constitution. Next question, how many members were there? How many members were there? How many members were there in the constituent assembly? पढ़ा नहीं अभी हमने, आंसर भी नहीं पता होगा आपको। ऐसे ही आज छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रही हूँ, नोट्स दे रही हूँ। Tomorrow we will start the basic function of constitution. 389. अभी ना इस क्वेश्चन के नीचे ना प्रीएम्बल लिखो, आप अपनी बुक खोलो, सारा नहीं लिखना, ओनली फर्स्ट लाइन। हाँ लवजोत बेटा, तो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? मेरा नेट स्लो चल रहा है सर। 389। हाँ जी बेटा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हाँ बेटा लवजोत, वांट टू से समथिंग बेटा? तो मेरा नेट स्लो चल रहा है सर। अच्छा ठीक है, मैं सुन नहीं रहा। हाँ जी प्रीएम्बल लिखो शुरू से, आपके पास बुक है वी द पीपल ऑफ इंडिया, कैपिटल लेटर्स में। If you want to change the pen, you can. If you want to take black pen or different colored pen, you can. We the people of India, बेटा single comma begin. आपके पास प्रीएम्बल है? हाँ बेटा ठीक है, ठीक है तरन। We the people of India, having solemnly resolved बेटा solemnly का मीनिंग लिखो, solemnly resolved लिखा ना?
इन द फॉर्मल वे, फॉर्मेलिटी के लिए, इन अ फॉर्मल मैनर. In a formal manner. Resolved to constitute India as a sovereign, बेटा सब कुछ कैपिटल में लिखना है, sovereign, secular, socialist republic, democratic and to secure all its citizen. Commas closed. आप लिखो मेरे सामने, मैं वेट करती हूँ. प्रियम्बल पूरा लिखो मेरे सामने. Then I will tell you each and every word clearly कि इसका मतलब क्या है. अमरपाल लिख रहे हो ना बेटा? तरण बेटा कैमरा ठीक कर. हाँ मान्या. Ma'am, we have to write Justice Liberty one also. बेटा नो, नॉट फुल. सिटीजन्स तक लिखो बस. Okay, ma'am. सर अब तूने लिखा नहीं है प्रियम्बल. बुक नहीं है ना तेरे पास बेटा, बुक अरेंज कर लो फटाफट. PT1 में यही चैप्टर डाला मैंने, कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. हाँ बुक तो अच्छा लिख लिया हुआ तूने. ठीक है बेटा, ठीक है. सिटीजन तक लिखना है, सारा नहीं लिखना, बस सिटीजन तक, कैपिटल लेटर्स तक, whatever it is written. डन बेटा. चलो चलो अब एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछो. जितना हमने पढ़ा है उसी में से पूछती हूँ. यू इफ यू वांट टू ओपन योर बुक एंड कॉपी यू कैन. चाहे देख के आंसर बता देना, मैं जो पूछ रही हूँ आपसे. ठीक है, बट बताना है, पार्टिसिपेशन जरूरी है. अमरपाल अनम्यूट योरसेल्फ. अब तो बेटा थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस हमने पढ़ ली है ना. नॉन पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स या बाहर कोई भी आदमी आपसे पूछे, अमरपाल आपने पॉलिटिकल साइंस रखी है ना, शायद लॉयर बनोगे आप, एडवोकेट बनोगे आप, सिविल सर्विसेज में जाओगे, तो कहते हैं इंडिया काफी रिस्पेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन की. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन अमरपाल, आप क्या बोलोगे? Constitution is a set of rules according to which a country is managed. हाँ, अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्नड. एक ऐसी बुक है जहां पर सारे रूल्स लिखे हैं कि देश को कैसे चलाना है. प्रधानमंत्री अपनी मर्जी नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी नहीं कर सकता, मिनिस्टर्स पीपल अपनी मर्जी नहीं कर सकते हैं. तो वट एवर इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन द कंट्री विल बी गवर्नड. देश वैसे ही चलाया जाएगा. वेरी गुड. हाँ जी सिमरन, जब हम अपनी बुक खोलते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन इतनी बड़ी बुक है वो, तो बुक के सामने ना एक पेज है, वहां पर लिखा प्रीएम्बल. हम पहले वो पढ़ते हैं, फिर आगे कॉन्स्टिट्यूशन बुक खोलते हैं. जैसे आपकी कॉपी जब मैं चेक करूंगी तो फर्स्ट पेज आई विल ओपन इंडेक्स, है ना, फिर मैं आगे फर्स्ट क्वेश्चन चेक करूंगी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कितने मेंबर्स हैं इसके, ये सब. सिमरन प्रीएम्बल क्या होता है? Ma'am, preamble is the you can tell me in your own wording, in your own language also. preamble is the summary in which all the set of rules are written. हाँ, ये Of a summary है citizen, सारा. basic Yes, citizen. like index है, आप समझे. Because whenever I will open your copy,
इंडेक्स पेज से मुझे पता चल जाएगा विच पेज यू हैव रिटन फंक्शन, ऑन विच पेज यू हैव रिटन फीचर्स, ऑन विच पेज चैप्टर फंडामेंटल राइट्स, ऑन which page chapter fundamental duties. So this is the index. प्रियम्बल है, इंडेक्स है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आगे क्या लिखा है, बस उसकी समरी, उसका समअप प्रियम्बल है। ठीक है, चलो हरमन अनम्यूट कर बेटा। बेटा 4 धुरंधर बंदे थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, और इन मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन करा था। कैन यू टेल मी दोज 4 नेम्स? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके, मैम मौलाना आजाद, ओके, मैम सरदार पटेल ओके। एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल को किसी और नाम से भी जानते हैं? मैम आयरन मैन ऑफ इंडिया। चलो, थैंक यू वेरी मच हरमन, थैंक यू सो मच। हाँ जी सरबजोत, सरबजोत सेकुलर क्या होता है? हम सारे स्टेट इकट्ठे रहंदे ने। नो, सारे रीजन। हाँ जी लवजोत। Secular means the all religions are same, equal. ठीक है, तो हमने किसी रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दी हुई लवजोत? मैम किस चीज में इम्पोर्टेंट दी, किस चीज में? किसी रिलीजन को? इन इंडिया सो मेनी रिलीजन्स आर देयर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, काफी सारे रिलीजन हैं। तो सबको इक्वालिटी दी, सबको मैम जैसे मैम सबको एक वही दिया है, कोई डिफरेंस नहीं बिटवीन देम। ठीक है, अच्छा अच्छा, हमारा ऑफिशियल रिलीजन क्या है? जैसे पाकिस्तान का इस्लाम है, इंग्लैंड अमेरिका में जाओ तो क्रिश्चियन उनका ऑफिशियल रिलीजन है, हमारा हिंदू धर्म। माने तू बता, विच इज इंडियाज ऑफिशियल रिलीजन? Ma'am, there is no official religion because India is a secular country. लो जी, अब ये कह रही है कि कोई ऑफिशियल रिलीजन ही नहीं है। तरन से पूछते हैं, सयाना बंदा है हमारी क्लास में तरन। तरन तू बता भाई, हमारा कौन सा है ऑफिशियल रिलीजन? मैम पता नहीं है जी। पता नहीं, ये तो फिर सुरखाब से पूछते हैं। मान्या को तो कुछ पता ही नहीं, कहती कोई भी नहीं है। सुरखाब तू बता। Ma'am, according to me also, India is a secular state, so all religions are equal. ठीक है, मैं तो सबसे पूछने वाली हूँ। तनिष्क तू बता, विच इज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया? मैम पता नहीं। क्यों, तुक्का ही लगा देता। चल, लास्ट स्टूडेंट अविशी, विच इज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया? India doesn't have any official religion. India is a secular country, so it doesn't have any particular religion. Yes, we don't have any particular religion as official religion. हम तो पहले धर्म में इतना ज्यादा फंसे हुए हैं, हमारा कोई भी नहीं है। दो लवजोत ने शायद इसलिए कह दिया, बहुत से लोग ये मानते हैं बिकॉज हिंदूज आर इन मेजॉरिटी, तो बहुत से लोग यही मानते हैं कि हिंदुइज्म इज अ नेशनल और ऑफिशियल रिलीजन, बट नो, हमारा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल। हमने कोई ऑफिशियल नहीं बनाया। अब मैं घर में जोत भी जगाती हूँ, पाठ भी करती हूँ, शाम को मैं गुरुद्वारे जाती हूँ। अब अगर मैं 4-6 महीने बाद कहूँ कि मैंने अमृत छकना, तो मैं अमृत छक सकती हूँ। अगले 6 महीने मुझे लगता है मेरे को तो चर्च जाया करना, मेरे को चर्च जाना अच्छा लगता है, तो मैं चर्च जा सकती हूँ। 6 महीने बाद फिर मैं कहती हूँ कि नहीं मैंने गुरुद्वारे जाना, तो मैं फिर जा सकती हूँ। तो वी डोंट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। रिलीजन की तो सारे पंगे थे ना तनिष्क, याद है तुझे? वी हैव फेस्ड द ट्रॉमा इन 1947। वो रिलीजन के ही तो सारे पंगे थे, हिंदू मुसलमान लड़ पड़े थे, एंड इट वाज डिक्लेयर्ड ऑन द 14-15 अगस्त नाइट, रात को डिक्लेयर हुआ था दैट द मुस्लिम विल बी इन पाकिस्तान एंड द हिंदूज विल बी इन हिंदुस्तान।
So that time, for the time being, we have just told them we have told Indian people that there is not any official religion for India, but later on we will definitely declare. But वो टाइम कभी आया ही नहीं, वो टाइम कभी आया ही नहीं। 84 में कितने झगड़े हो गए, जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई, किसी सिख ने मारा उसको, तो फिर झगड़े हो गए। हिंदू और सिखों में कितने झगड़े हुए 84 के राइट्स। स्टिल वी हैव एक्सपीरियंस दैट ट्रॉमा। आज भी देखो 2021 में आप न्यूज देखते हो, व्हाट्सएप पे वीडियोस आती हैं, फेसबुक देखते हो, इंस्टा पे हो आप, even now you have seen that many of the issues related to religion। अभी हमने किसी को बनाया नहीं है लवजोत, किसी को मैंने नहीं अभी इंडिया ने नहीं बनाया ऑफिशियल रिलीजन, फिर भी इतने झगड़े होते हैं। तो सोचो कल को हम ये डिक्लेयर करें कि सिखिज्म इज ऑफिशियल रिलीजन, तो बाकी छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल। वी हैव नॉट, हाँ पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में अगर आप जाओगे वहां पर रहना है तो आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर नॉट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ऐसे ही इंग्लैंड अमेरिका में है, वहां के सिटीजन बनना है जो वहां के सिटीजन है, तो क्रिश्चियन एज द बेसिक रिलीजन इंग्लैंड में है, बट इन इंडिया इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग। गुरुद्वारे जाना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, जहां जाना आप जा सकते हो। ठीक है, चलो अब सम अप करते हैं। मैं पूछती हूँ गुरकीरत से। गुरकीरत, तो फिर इस तरह हम कह सकते हैं कि हिंदुइज्म हमारा ऑफिशियल रिलीजन है, एम आई राइट? नो नो, ठीक है, मैं यही देखना था, अवेयर है। ठीक है, चलो बेटा, थैंक यू वेरी मच, एंड टुमारो वी विल स्टार्ट रीडिंग द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर हमें दिया ही क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या काम है? यू हैव रिटन नोट्स टुडे एंड टुमारो वी विल रीड। चलो, थैंक यू वेरी मच बेटा, आई एम गोइंग टू एंड अप द क्लास। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बेटा।